Hello everyone, welcome to Exams Ground. In this video I am going to solve MP Assistant Professor Physics question paper. This is part 3rd video and contains question from 101 to 150. Already part 1 and part 2 upload हो चुका है. You can visit that. Without any delay, let's start guys. Question 101. The pressure for a non-interacting Fermi gas with internal energy U and volume V at temperature T is PV equal to 2 by 3U होता है. Accordingly जो pressure आ जाएगा 2 by 3 U by V. You can get it. Option A is correct here. Question 102. In Einstein's theory of Brownian motion, the root mean square displacement of the particle depends on time elapsed t as root mean square displacement x equal to square root 2 dt, where d is diffusion constant. So it is proportional to t power half. Option D is correct here. Question number 103. In the perspective of random walk, the diffusion coefficient d of a system is mean square displacement x square mean. It is equal to n lambda square equal to 2 dt. Average step size lambda, time per step tau, n is the number of step. तो जो t टाइम लगने वाला it is equal to n into tau. ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा एंड जो वैल्यू आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 2 d tau एंड फ्रॉम हियर d equal to lambda square by 2 tau, that is proportional to square of the average step size. Option B is correct here. Question number 104. A thermodynamic system at constant temperature and pressure will be in stable equilibrium if its देखिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इक्वल टू TdS माइनस PdV प्लस म्यू dn होता है. अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. जो एंथैल्पी रहेगा इट इज इक्वल टू यू प्लस पी वी. टेक द डेरिवेटिव डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी प्लस म्यूडियन आएगा. कैसे आएगा आप इसको डेरिवेटिव ले सकते हैं. डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी आएगा. डी यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट दिस. अब ये मिनिमम किस पर होगा जब यस और पी कांस्टेंट रहेगा. यस और पी जब कांस्टेंट रहेगा एंथैल्पी मिनिमम रहेगा. हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस. तो डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी. डी यू की वैल्यू यहाँ पर मेंशन है, इसको पुट करेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा. एट कांस्टेंट टी एंड वी ये वैल्यू मिनिमम होने वाली है. तो टी एंड वी पे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आपका ये मिनिमम रहेगा. गिब्स फ्री एनर्जी अगर अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे गिब्स पोटेंशियल जी is minimum and internal energy it is minimum at constant S and V. तो accordingly पूछा हुआ था at constant temperature and pressure तो Gibbs potential G is going to be minimum. Option B is correct here. Question 105. Bose-Einstein condensation temperature Tc refers to the temperature below which there is a significant large occupancy of bosons in the ground state of the system. Option C correct है. Question 106. The errors that occur due to unknown causes are usually termed as random error. Option C is correct here. Question number 107. A certain resistor has a voltage drop of 110.2 volt and a current of 5.3 ampere. The uncertainties in the measurement are 0.2 volt and 0.06 A respectively. The uncertainty in the power is, power का फार्मूला होता है P equal to VI using error propagation और uncertainty in power डेल्टा P it is equal to स्क्वायर रूट. इनका चेन रूल अप्लाई कर दीजिए और इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कीजिए. डेल्टा V I होल स्क्वायर प्लस डेल्टा I V होल स्क्वायर. तो यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा 6.7 वाट आ जाएगा. अनसर्टेनिटी इन पावर डेल्टा P it is equal to प्लस माइनस 6.7 वाट. ऑप्शन B is correct here. क्वेश्चन नंबर 108. When the number of observations is less than 20, the standard deviation having a symbol is given by. सैंपल साइज अगर लेस रहेगा देन हम लोग को यहाँ पे एक टर्म n-1 यूज करना पड़ेगा. फॉर स्मॉल सैंपल लाइक लेस देन 20 यूजिंग n-1 बेसल करेक्शन इज इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पे ये n-1 टर्म आएगा. फॉर वेरी लार्ज n-1 और n बराबर होते हैं तो ये कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा. लेकिन अगर n की वैल्यू सैंपल साइज अगर छोटा है तो यू हैव टू टेक n-1 कंसिडर करना पड़ेगा. s इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन d स्क्वायर डिवाइड बाई n-1. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. Question number 109. A straight line is least square fitted as per the following data. X equal to 1 2 3 4 5 6, y equal to 6 4 3 5 4 2. ये एक टेबल दिया हुआ है. The least square straight line equation is, the least square straight line equation हो जाएगा y equal to a plus bx. b slope हो जाएगा, a intercept हो जाएगा. तो given data numbers n equal to 6, take the summation of x data. Summation x equal to 21,
y का समेशन 24 आएगा। इनको मल्टीप्लाई कीजिए 6 इंटू 1, 4 इंटू 2, 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई करके 8 कीजिए तो समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 75, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 91। तो b की वैल्यू आ जाएगा n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.514। दिस इज द स्लोप। एंड जो आपका इंटरसेप्ट आएगा समेशन y माइनस बी टाइम्स समेशन x डिवाइड बाई n, इट इज इक्वल टू 5.8। तो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 5.8 माइनस 0.514x, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 110, द स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेटिंग कर्व टू बी फिटेड बाय द लीस्ट स्क्वायर फिटिंग मेथड फॉर अ हाइपरबोला इज गिवन बाय। हाइपरबोला का जो इक्वेशन होगा देखिए दो फॉर्म में है। एक जो आप स्टैंडर्ड देखते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1। एंड जो सेकेंड है y इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट प्लस a1x, ये भी आपका एक इक्वेशन होगा हाइपरबोला के लिए। टू फिट अ हाइपरबोला यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड, द स्टैंडर्ड अप्रोच इन्वॉल्व्स लीनियराइजिंग द हाइपरबोला इक्वेशन। तो इसको रेसिप्रोकल कीजिए तो 1 अपॉन y इक्वल टू a नॉट प्लस a1x। जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता था वो ऑप्शन सी होता। यह क्वेश्चन फाइनल आंसर की से ड्रॉप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 111, under the conventional considerations, Lorentz transformations for coordinates, which among the following is correct? Option A is correct. X prime equal to x minus vt divided by square root 1 minus v square by c square, y prime equal to y and z prime equal to z. Question number 112, what interference we can draw from the Poisson bracket fh equal to 0, where f is any function that depends upon position coordinate qi, momentum coordinate pi and time t, and h is the Hamiltonian। देखिए जो इक्वेशन आएगा, टेक द टोटल डेरिवेटिव df by dt is equal to Poisson bracket of fh plus partial derivative of f with respect to t। दिस टर्म इज 0, तो इसको 0 करेंगे तो df by dt इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to t। if f is conserved quantity, अगर यह कंजर्व होता तो इसकी जो डेरिवेटिव है टोटल डेरिवेटिव 0 आता, तो del f over del t भी 0 आता। दैट मीन्स f कैन नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम। बट यहाँ पे एक कंजर्व क्वांटिटी मेंशन नहीं किया था। गिवन ऑप्शन बी था, फंक्शन f डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। यह कब पॉसिबल होगा? जब हमारे पास कैपिटल F जो गिवन टर्म है यह कंजर्व रहेगा, df by dt इक्वल टू 0। तो मैं इसको ग्रे लिस्ट में पुट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 113, इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होने वाला है। इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम फिक्सियस फोर्सेस, फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल कोरियोलिसिस, arises due to the frame's acceleration. A particle with no real forces acting on it will appear to accelerate relative to this frame. Although कोई real force नहीं है फिर भी वो एक तरह से acceleration feel करेगा। A force free particle experiences acceleration, correct होगा। And Newton's first law states that a force free particle moves with constant velocity। लेकिन in a non-inertial frame यह law valid नहीं होता, फेल कर जाता है। तो Newton's first law of motion does not hold true। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होगा फॉर non-inertial frame of reference। क्वेश्चन नंबर 114, the reduced mass of positonium is। पोजिट्रोनियम इज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। दोनों का मास m लेना है, तो m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, दिस इज द रिड्यूस्ड मास। m पुट करेंगे तो m स्क्वायर डिवाइड बाई 2m आएगा, विच इज इक्वल टू m बाई 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 115, When a particle moves under central force, इसमें जो कंडीशन आएगा all of the above, its angular momentum is conserved, its path is in a plane, its aerial velocity remains constant। ऑप्शन डी इज करेक्ट, all of the above करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 116, the Shockley diode as long as the forward voltage is less than breakover voltage it behaves as। when forward voltage is less than breakover voltage it is in off state, और जब यह threshold voltage से ज्यादा रहेगा then it is in the on state। तो यहाँ पर less है, that's why option A is correct, it behaves like a open switch। Question number 117, the point where the load line and the characteristic curve of a transistor intersect in the absence of the signal is called quotient point or Q point। देखिए वेरियस यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया गया है, इनको ही हम लोग quotient point बोलते हैं, जहाँ पे कट करेगा। The point where the load line and the characteristic curve of a transistor intersect in the absence of a signal is called the quotient point। Question number 118, in the active state of a transistor its collector current IC is beta times the base current IB। Thus the transistor acts as amplifier, यह enhance कर रहा है।
और जो रेक्टिफायर होता है यह AC को DC में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे नहीं होने वाला है। और जो ऑसिलेटर होता है, फॉर दैट वी नीडेड फीडबैक सर्किट। इन द एक्टिव स्टेट ऑफ अ ट्रांजिस्टर द रिलेशनशिप IC इक्वल टू बीटा टाइम्स IB सिंप्लीफाइज दैट अ स्मॉल बेस करंट कंट्रोल्स अ मच लार्जर कलेक्टर करंट वेयर बीटा इज अ ट्रांजिस्टर करंट गेन। इट बिहेव्स लाइक एन एम्पलीफायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 119, अ ट्रांजिस्टर हैविंग नंबर BC147 कंसिस्ट ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो फर्स्ट लेटर रहेगा ऑफ अ ट्रांजिस्टर कोड indicates the material. If first letter starts from A, then it is germanium. Start from B, then silicon. Start from C, then gallium arsenide. Here the letter B is first. BC147, that indicates it is a silicon material. Option B is correct here. Question number 120. The heat sink is generally used with transistor to prevent excessive temperature rise. Option D is correct here. Question number 121. According to liquid drop model, contribution of coulombic energy to binding energy of nucleus is. तो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, जो वैल्यू आएगा AZ-1 डिवाइड बाई A पावर 1/3। ये वाला जो टर्म है आपका, ये आपका कोलम्बिक इंटरेक्शन का टर्म है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कोलम्बिक टर्म। दिस इज सरफेस टर्म, दिस इज वॉल्यूम टर्म। क्वेश्चन नंबर 122। फर्स्ट इक्वेशन म्यू प्लस 2 पॉजिट्रॉन प्लस गामा। सेकेंड इक्वेशन म्यू माइनस 2 पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। तो दोनों इनकरेक्ट होने वाले हैं, कोई भी वैलिड नहीं होगा। इंडिविजुअल लेफ्ट-हैंड नंबर वायलेशन हो रहा है। यहाँ पे म्यूनिक लेफ्ट-हैंड नंबर है लेफ्ट में, लेकिन राइट में नहीं होने वाला है। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉनिक राइट में है बट लेफ्ट में नहीं है, तो इंडिविजुअल वैलिड होना चाहिए। तो नन ऑफ दिस, बोथ आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123। विच पार्टिकल आर एक्सचेंज्ड इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो जहां पर हमारे पास अगर इक्वेशन में मेसान इन्वॉल्व हो रहा है, वह भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। और जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहेगा क्वार्क के बीच में जो अप्लाई होता है, it is mediated by the gluons. तो ऑप्शन D is going to be correct here. Question number 124. Mesons are made up of. It is made up of quark and antiquark. तो ऑप्शन C is going to be correct. Question number 125. If mass of radioactive sample is doubled, the disintegration constant same रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए जो एक्टिविटी होता है इट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू प्रेजेंट टाइम में जो नंबर रहेगा लैम्डा n हो गया। नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई n इक्वल टू n नॉट e रेज़्ड पावर माइनस लैम्डा t। तो यहाँ पे जो लैम्डा टर्म यूज हो रहा है दैट इज द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यह सेम रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। क्वेश्चन नंबर 126। एन एयर स्पेस्ड कोएक्सियल केबल हैज एन इनर कंडक्टर 0.5 centimeter in diameter and an outer conductor 1.5 centimeter in diameter. When the inner conductor is at potential of 8000 volt with respect to the grounded outer conductor, then the charge per meter on the inner conductor will be. Formula for the capacitance per unit length of a coaxial cable, C equal to 2 pi epsilon naught log B divided by A। ए और बी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, इनर रेडियस आउटर रेडियस। सी की वैल्यू आ जाएगा 50.67 इंटू 10⁻12 एफ पर मीटर। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू प्राइम इक्वल टू सी प्राइम वी। सी प्राइम की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किया है, वैल्यू पुट कर दीजिए। वी की वैल्यू यहाँ मेंशन किया गया है, तो अकॉर्डिंगली 4.05 इंटू 10⁻7 कूलम पर मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Question number 127. A metal pipe of infinite length and radius r is placed perpendicular to an otherwise uniform electric field E naught. The value of induced surface charge on the pipe will be. Electric potential outside the pipe, ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली, माइनस ई नॉट आर 1 माइनस आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर कॉस फाई। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू आर। और आपको फाइंड आउट करना है एट रेडियस, तो कैपिटल आर पर आपको निकालना है। इसको सॉल्व कीजिए एंड वैल्यू पुट कीजिए। आंसर इज 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस फाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 128. What is the potential phi at the edge of a thin disk of radius r carrying the uniformly distributed charge with surface density sigma? तो एक डिस्क के जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस रहेगा वहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस r एंड विथ डी आर ऑन द डिस्क। तो जो चार्ज आ जाएगा इस रिंग पे डी क्यू इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर डी आर। द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस रिंग टू अ एज ऑफ द डिस्क, एज ऑफ द डिस्क से जो डिस्टेंस आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली द पोटेंशियल एट द एज ड्यू टू इंटायर डिस्क, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन चार्ज ओवर डिस्टेंस। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आएगा सिग्मा आर डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 129. द टॉप ऑफ द बॉटम
faces of a rigid insulating box of dimension A by B by H and mass m is charged with uniform surface charge density plus sigma and minus sigma respectively, and the box is placed in a uniform horizontal magnetic field B equal to B naught J cap. Assuming free space conditions and H negligibly small h compared to the dimension A and B, find how much velocity will the box acquire after the magnetic field is switched off. जब मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ होगा तो ये क्या होगा, फ्लक्स चेंज होने वाला है, उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जो बॉक्स का डायमेंशन है, विड्थ a हो गया, लेंथ b हो गया और हाइट h ले लिया गया है। Induced electric field from the Faraday's induction law, integration E dot dl it is equal to minus delta phi over delta t। जो डेल्टा फाई है चेंज इन द फ्लक्स होगा, जब स्विच ऑफ होगा तो फ्लक्स में चेंज होने वाला है, तो फ्लक्स में चेंज क्या आ जाएगा, b इंटू ए होता है, तो इसका जो एरिया आ जाएगा a इंटू एच आ जाएगा, विड्थ इंटू हाइट डिवाइड बाई डेल्टा टी। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा नॉट एच डिवाइड बाई 2 डेल्टा टी। अब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो चार्ज होगा, जो ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा ए बी, बॉटम का चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा ए बी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टॉप के लिए इस डायरेक्शन में है, बॉटम के लिए इसके अकॉर्डिंग है, दोनों को जब यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा ए बी ई इन द एक्स डायरेक्शन प्लस पॉजिटिव का आई कैप डायरेक्शन में आने वाला है। मोमेंटम एम वी अकॉर्डिंग टू द इम्पल्सिव फोर्स, यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी कर देंगे, इट इज इक्वल टू एम वी। एफ की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और डेल्टा टी कैंसिल कर जाएगा, अकॉर्डिंगली जो वी की वैल्यू है आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा ए बी एच बीटा नॉट डिवाइड बाई एम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 130, a long solenoid of radius A is driven by an alternating current so that the field inside is solenoidal B equal to B naught cos omega t in z cap direction. A circular loop of wire of radius A by 2 and resistance R is placed inside the solenoidal and coaxial with it. The current induced in the loop as function of time will be मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू एरिया। एरिया की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर मेंशन किया गया रेडियस A by 2 है, तो पाई a बाई 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड, ये वैल्यू आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये वैल्यू आ जाएगा, डेरिवेटिव ले लीजिएगा साइन ओमेगा टी ओमेगा, ये वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, दिस टर्म डिवाइड बाई आर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। पाई a स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 4r बी नॉट साइन ओमेगा टी। 131. The maximum possible number of quantum states of an electron in an atom corresponding to the principal quantum number 3 is. The number of quantum states for a given principal quantum number n is equal to 2n square. n की वैल्यू 3 है तो 3 square into 2 18. Option D is correct here. Question number 132. The notion of proved to be useful in explaining phenomena such as fine structure and anomalous Zeeman effect. तो orbital motion of electron and electron spin both A and B करेक्ट होने वाला, both required होने वाला है। anomalous में आपको spin का भी required रहेगा और जो यहाँ पर fine structure है spin orbit coupling होता है, तो both is required. Option C is correct here. Question number 133. The value of principal quantum number n and orbital quantum number l correspond to the 3p power 5 orbital r. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो जाएगा n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यहाँ से स्पिन निकल जाएगा और l है, l पर आपका p दिया हुआ है, तो s p d f, p के लिए l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। ऑप्शन बी 3 and 1, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दिस इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 134. स्पेस क्वांटाइजेशन refers to quantization of direction of angular momentum. Space quantization specifically refers to the quantization of the direction of angular momentum. This arises because the component of angular momentum along a chosen axis can only take discrete values. So B is the correct one. Question number 135. The fine structure doubling of spectral line arises due to spin orbit coupling. The fine structure doubling of spectral lines arises due to spin orbit coupling. This interaction between an electron's intrinsic spin and its orbital motion around the nucleus leads to splitting of the energy levels. So B is correct here. Question number 136. If the orbital angular momentum is a generalization of momentum in classical momentum L equal to R cross P, then what is the classical analog of spin angular momentum in quantum mechanics? Spin is an intrinsic quantum property with no direct counterpart in classical mechanics. So no analog. Option A is correct here.
क्वेश्चन नंबर 137, WKB अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड व्हेन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सिस्टम हैज लार्ज मास, हाई एनर्जी एंड पोटेंशियल स्लोली वेरिंग। तो ऑल होने वाले थे, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138, quantum number of plus half and minus half for the electron spin represent two quantum mechanical spin states which has no classical analog. Option D is going to be correct. The quantum number plus half and minus half for electron spin represent two distinct quantum mechanical spin state with no direct classical analog. ठीक है, तो classical concept like clockwise anti-clockwise cannot be applied here. ये आपका physical rotation नहीं है, ये quantum property है, intrinsic property of quantum. Question number 139, a perturbation H equal to V naught 3 cos square phi minus 1 where V naught is constant is applied to a rigid rotator undergoing rotational motion in a plane. The first order energy correction term to the ground state would be. तो यहाँ पर perturbation दिया हुआ है for a planar rotator. द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन 1/√2 पाई आएगा। अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू साई नॉट एच प्राइम साई नॉट। इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो जो आंसर आएगा V0/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 140, इफ द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड सरफेस चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 627 डिग्री सेल्सियस देन इट्स इमिसिव पावर चेंजेस इन द रेशियो ऑफ। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T⁴। तो इनका रेशियो ले लीजिए T2/T1 होल पावर 4 आ जाएगा। इनको आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रखिएगा केल्विन में, तो 273 ऐड कर दीजिए दोनों में, तो 900 डिवाइड बाई 300 होल पावर 4 आ जाएगा। 81 इज द आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 141, a very long bar magnet is placed with its north pole coinciding with the center of a circular loop carrying an electric current I. The magnetic field due to the magnet at a point on the periphery of the wire is B. If the radius of the loop is A, then the force on the wire is. Force on the current element dF equal to I dl क्रॉस B। तो ये आपका एक लूप है और जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इसके परपेंडिकुलर आने वाला है, तो dl b sin थीटा sin 90, मतलब आपका जस्ट 1 आ जाएगा वहां से, और b यूनिफॉर्म है आउटसाइड लीजिए, i b और dl इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 पाई a आ जाएगा, 2 पाई a i b, ये वैल्यू आ जाएगा, और जो वैल्यू आएगा फोर्स का इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो ऑप्शन A is going to be correct here. Question 142. Suppose a magnetic monopole QM passes through a resistance-less loop of wire with self-inductance L. The current induced in the loop is. The flux through the loop μ0 QM and induced EMF minus d∅dt आ जाएगा। This EMF is balanced by the inductor. तो यहाँ से जो हमारे पास EMF आने वाला है माइनस L/di/dt आने वाला है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, माइनस L/di/dt इक्वल टू माइनस d∅dt। टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो Li इक्वल टू μ0 QM आ जाएगा, यहाँ से I इक्वल टू μ0 QM डिवाइड बाई L, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Question number 143. In a coaxial straight cable, the central conductor and the outer conductor carry equal current in opposite directions. The magnetic field is 0 outside the cable, inside the inner conductor, inside the outer conductor, in between the two conductors. तो फॉर R इज ग्रेटर देन R आउटसाइड द आउटर कंडक्टर, द टोटल इनक्लोज करंट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, अपोजिट करंट थे दोनों में। बाय एम्पियर्स लॉ B.dl इंटीग्रेशन इट इज इक्वल टू μ0 I इनक्लोज्ड। तो I इनक्लोज्ड की वैल्यू 0 है, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ऑप्शन ए आउटसाइड द केबल इसकी जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की 0 रहेगी। Question number 144. A half cylinder of radius R and length L greater than R is formed by cutting a cylindrical pipe made of an insulating material along a plane containing its axis. The rectangular base of the half cylinder is closed by a dielectric plate of length L and width 2R. The charge Q on the half cylinder and the charge small q on the dielectric plate are uniformly sprinkled. The electrostatic force between half cylinder and dielectric plate will be. देखिए यहाँ पर हाफ सिलेंडर है जिस पर चार्ज Q है और ये डायलेक्ट्रिक रखा गया है इस पर स्मॉल q चार्ज का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से डेंसिटी आ जाएगा Q डिवाइड बाई 2RL। यहाँ से लेंथ L था सिलेंडर का और यहाँ पर जो डायमीटर है 2R होने वाला है। जो फोर्स होने वाला है E इंटू चार्ज होने वाला है। चार्ज के लिए हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं E डॉट सिग्मा ds, ठीक है, जो चार्ज डेंसिटी है और ds स्मॉल एरिया एलिमेंट ले सकते हैं, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया एलिमेंट, तो अकॉर्डिंगली सिग्मा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, E डॉट ds आने वाला है। E डॉट ds क्या हो जाएगा, ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से जो कैपिटल Q है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था, तो ये फ्लक्स देगा, तो इसका मतलब जो फोर्स आने वाला है सिग्मा इंटू फाई आने वाला है, सिंपल सा केस था।
फोर्स इक्वल टू सिग्मा इंटू फाई। अब इस जो सिलेंडर है इसका जो चार्ज क्यू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से फ्लक्स क्या आने वाला है। तो देखिए अगर कोई भी पार्ट लेंगे, ये हमारे पास डायमीटर हो जाएगा, सभी पार्ट 90 डिग्री बना रहे हैं, तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा सभी डायरेक्शन में निकलेगा, एवरीवेयर निकलेगा। इस डायरेक्शन में कितना आएगा, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाई 360, तो 1/4 आने वाला है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, टोटल फ्लक्स हो गया, उसका 1/4 कर दीजिए। और सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q डिवाइड बाई 2RL। इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्मॉल क्यू कैपिटल Q डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट RL। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। Question number 145. A particle of charge Q is traveling at constant speed v along the x-axis. Calculate the total power passing through the plane x equal to a at the moment the particle itself is at the origin. E की वैल्यू क्या आ जाएगी, अकॉर्डिंगली देखिए फार्मूला लिखा गया है, आप यहाँ पर E की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, B की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1/μ0 E क्रॉस B। अकॉर्डिंगली स्टेप्स फॉलो किए गए हैं, और जो P आएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस पॉइंटिंग वेक्टर ओवर एरिया। जो रिजल्ट आने वाला है Q² V डिवाइड बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब। यहाँ पर स्टेप्स मेंशन किए गए हैं, सॉल्व कीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 146. द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ मॉसफेट इज एट द ऑर्डर ऑफ metal oxide semiconductor field effect transistor MOSFET has the following characteristic. High input impedance, voltage control device के रूप में यूज किया जाता है, लो पावर कंजम्पशन, यूनिपोलर डिवाइस होता है, फास्ट स्विचिंग स्पीड होता है। तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस पूछा गया है ये वेरी हाई होगा, तो सेवरल मेगा ओम बोल सकते हैं, मेगा ओम गीगा ओम रेंज में जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 147. A differential amplifier has differential voltage gain of 2000 and a common mode gain of 0.2. The CMRR of this amplifier in decibel would be. तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इन डेसिबल इट इज इक्वल टू 20 log 10 AD डिवाइड बाई AC। तो डिफरेंशियल गेन यहाँ पर मेंशन किया गया था 2000 डिवाइड बाई कॉमन मोड गेन 0.2 है, रेशियो लीजिए 10,000 आ जाएगा, यहाँ पर पुट कीजिए तो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा आउटसाइड में, 20 into 4 80 डेसिबल। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 148. एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस एंड जीरो आउटपुट इम्पीडेंस। सच ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आइडियल ओपीएम हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 149. एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज अ गेन बैंड विड्थ प्रोडक्ट ऑफ 15 मेगाहर्ट्ज इफ इट्स क्लोज लूप गेन इज 500, इट्स बैंडविड्थ इज गेन एंड बैंडविड्थ प्रोडक्ट इट इज इक्वल टू 15 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ से आप बैंडविड्थ निकाल सकते हैं 15 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाई गेन। गेन की वैल्यू मेंशन है, डिवाइड कर लीजिए 30 किलोहर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Question number 150. In the circuit of an operational amplifier, both input and feedback resistances are at 1 kilo ohm. If the input voltage Vin of 1 volt is fed to the inverting terminal, the output voltage V0 would be. तो जो गेन होता है इट इज इक्वल टू -RF डिवाइड बाई R इन। दोनों जगह पर 1 किलो ओम यूज किया गया था, तो जो गेन आएगा -1 आ जाएगा। V0 इक्वल टू व्हाट, गेन मल्टीप्लाइड बाई इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट दिया गया था, तो जो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 वोल्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके गाइस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इन फ्यूचर मेनी मोर वीडियोज विल कम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।